Assalamualaikum dear students, I hope you are all doing well. This is Zinia and I welcome you all to yet another video from STEM International, continuing with our book 7 for English. और हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 जो है उसकी रीडिंग की थी. रीडिंग करके बैटल ऑफ बदर को जो है वो समझा था, उस टाइम पे क्या सर्कमस्टांसेस थे, और ऑल्सो दी वेरियस लेसन्स दैट वी लर्न फ्रॉम इट, कि क्या कुछ सीखा हमने, कैसे करेज, ब्रेवरी और फेथ इन अल्लाह के कॉन्सेप्ट को या फिर वैल्यूज़ को हमने समझा. एंड नाउ इट इज़ टाइम कि वी जंप इनटू द एक्सरसाइज के अंदर. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द पोर्शंस ऑफ MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर chapter and also the part related to vocabulary. So come, let's dig in. Alright students, so we're starting off with the exercise and the very first part is that of MCQs. So MCQs को जल्दी से start कर लेते हैं. The first one asks us कि the Quraysh were mainly, who were the Quraysh? Quraysh का basic काम क्या था? And we have studied in this particular chapter, and also if you remember what you had studied in the previous class, so it is कि Quraysh were traders. So the third one is the right answer. Then second is, who was leading the caravan from Syria? Syria से मक्का जब जा रहा था caravan, तो फिर उसको lead कौन कर रहा? तो हमने इसको सबसे पहले पेज पे ही पढ़ लिया था. It was Abu Sufyan. So the third one is the right option. Then how many soldiers were in the Meccan army? मक्का की जो आर्मी बनी, डेवलप हुई और आई लड़ने के लिए, उसमें कितने soldiers थे? And we have studied it and read it in this chapter that there were 1,000 soldiers. Therefore the third one is the right option. Then how many people were martyred in the battle of Badr? Martyr की हम बात करते हैं तो मार्टर जो शहादत पाते हैं वो इस्लाम के ही साइड से आएंगे, उसके ही ज़ुमरे में आएंगे. और फिर मार्टर्स का हमने जो है वो नंबर पढ़ा था बाय द एंड ऑन पेज नंबर 7, दैट वाज 14. सो देयरफॉर थर्ड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. And then which surah was revealed on the occasion of the battle of Badr? और ये हम इसी पेज पे जो है वो टॉप पे देख रहे हैं, सूरा अल-अनफाल जो है, that was basically revealed on this occasion. So the third one is the right option. Now we move onwards to the fill in the blanks. और इसमें कुछ blanks हैं. I hope that they will be as easy जितने हमारे MCQs easy थे. Number 1, the caravan carried wealth worth some dinars. How many dinars were they? ये भी हमने जो है first page पे ही पढ़ लिया था on page number 5. That is 50,000 dinars. Dinars in other words gold coins. Abu Jahl arrogantly insisted on advancing to Dash and celebrating their strength by indulging in festivities. तो अबू जहल, जबकि अबू सुफियान जब safely he reached Makkah, he was like fine, no need कि हम जो है अब एडवांस करें, वापस आ जाना चाहिए. सोल्जर्स ने भी यही सोचा, लेकिन अबू जहल ने एरोगेंटली इंसिस्ट किया कि नहीं, हमें जो है वो आगे चलते जाना चाहिए. तो उन्होंने कहाँ तक जाना था? उन्होंने बैटल फील्ड तक पहुँचना था, और बैटल फील्ड थी इन बदर. So the answer to this blank is Badr. And then Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wasallam was impressed by the courage and loyalty of his. Who were those people? मुहाजिरीन थे और अंसार थे, और इन सब को मिला के जो उनके टाइम पे प्रॉफिट पीस पे पहुंचने के टाइम पे उनके साथ थे, उनको कंपेनियंस कहा जाता है. So the right answer to this blank is companions. Next, Allah subhanahu wa ta'ala sent Dash to help the Muslims as mentioned in the glorious Quran. तो अल्लाह ताला ने किन्हें भेजा था ताकि वो मुसलमानों की मदद कर सकें? दिस इज़ प्रोवाइडेड ऑन पेज नंबर 7 एंड दैट इज़ ही सेंट द एंजल्स, जिनको गायबाना मदद के तौर पे जो है वो भेजा गया. एंड द लास्ट ब्लैंक इज़ दैट इन द बैटल ऑफ बदर Dash non-believers were killed and the same number taken as prisoners. So we have also read about this on page number 7, very last paragraph, that 70 were killed and the same number was taken as prisoners. Done with that, now we move onwards with the questions जिनमें short answers देंगे हम. The first one is, why was Abu Sufyan worried as his caravan approached Medina? And we have already read about it कि अबू सुफियान जैसे ही जो है वो मदीना से गुजरने लगे थे तो उसको एक फ़िक्र थी, और वो फ़िक्र ये थी कि जनाब जो मुसलमान हैं वो कैरावान को लूट लेंगे, राइट, या उनके काफ़िले को जो है लूट लिया जाएगा. द सेकेंड वन इज़, वाई डिड अबू जहल इंसिस्ट ऑन गोइंग टू बदर? तो फिर अबू जहल जो था उसने क्यों इंसिस्ट किया कि नहीं, हमें बदर ही जाना चाहिए? तो इसका बैकग्राउंड बेसिकली हमने जो है वो फर्स्ट पे ही पढ़ लिया था, शुरू में ही ऑफ द चैप्टर, कि अबू सुफियान तो काफ़िले के साथ सेफली ही रीच्ड दी मक्का, राइट, बट अबू जहल वाज द वन जिसने कहा कि नहीं, हमें फिर भी जो है वो बदर तक जाना चाहिए, और वहाँ पे जो है वो हम अपनी फेस्टिविटीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट करेंगे वहाँ जाके. सो दिस वाज व्हाई ही केप्ट ऑन इंसिस्टिंग. Number 3, what counsel did the Ansar give to Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wasallam?
क्या जो अंसार थे, जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहा कि ठीक है हम जो है ऑफ कोर्स हमने जो है वो आंसर देना है, हम लड़ाई शुरू तो नहीं करेंगे लेकिन हम वहाँ पे पहुँचेंगे, तो फिर उन्होंने उससे पहले जो है ये सारा का सारा डिसीजन लेने से पहले एक काउंसिल क्रिएट किया और उस काउंसिल के अंदर जो है पर्टिकुलरली अंसार को शामिल किया था। तो अंसार ने जो है वो क्या किया, अंसार ने बेसिकली उस काउंसिल में अपना प्लेज दिया था ओबीडियंस का और सेक्रीफाइस का, कि हम अपने पूरे करेज के साथ, पूरे दिल के साथ और पूरी होश हवास में जो है वो आपके साथ चल रहे हैं और आपके साथ चलेंगे डिस्पाइट कुछ भी हो जाए या कितना भी जो है वो डिफ़िकल्ट मोमेंट हमें फेस करना ना पड़ जाए। हाउ डिड अल्लाह सुब्हानहू व तआला हेल्प द मुस्लिम्स इन द बैटल ऑफ बदर? अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेसिकली, एज वी हैव ऑल्सो स्टडीड और रेड इन द चैप्टर, फर्स्ट थिंग वाज कि ही वाज प्रोवाइडिंग और रिवीलिंग अ गुड न्यूज़, एक गुड न्यूज़ या एक खुशखबरी दे रहे थे, गुड टाइडिंग्स की, कि जी आने वाला जो वक्त है या जो अभी होने जा रहा है उसमें आप लोगों की जीत होगी। ये अल्लाह ताला ने अपनी आयात में ही जो है वो रिवील कर दिया था पहले। एक तो इस तरह से, क्यों? क्योंकि इन आयात की वजह से जो है मुसलमानों का जो मोराल था वो हाई होता गया, राइट? इट स्ट्रेंथन देम, गेव देम मोर करेज। और दूसरी चीज़ ये कि गायबाना मदद जो है उसके ज़रिए उन्होंने मुसलमानों की मदद की, एंड दैट वाज बाय सेंडिंग डाउन एंजल्स टू हेल्प द मुस्लिम्स. And this was how Allah subhanahu wa ta'ala helped the Muslims in the battle of Badr. The last question is, what was the outcome of the battle of Badr? तो हमने outcome भी पढ़ा battle of Badr का. It was के the outcome was, एक overall अगर हम single sentence में बोलें तो it was the victory of the Muslims. लेकिन इसमें एक और चीज़ जो ये है वो ये है कि जी it doesn't basically depend on how much equipment a person has, how much resources a person has, but it basically depends on how much faith a person has in his capacity, और उस capacity के साथ साथ how willing that person is to move forward towards his goal. ये आउटकम जो है वो बैटल ऑफ बदर को उसने शेप किया कि जिसकी वजह से फिर जो मुसलमान थे वो जीत गए. सो दिस वाज द आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ बदर, के मुसलमान अपने ही अंदर जो है उन्हें करेज मिला बिकॉज वो डटे रहे. Now what we are going to do is we're going to move onwards with words and meanings. इसमें हमें कुछ new words provided होते हैं. वो new words जो हैं सारे के सारे chapter में हमने सीखे हैं और साथ ही उसके meanings हैं. So the first one is caravan. Caravan, a group of people traveling together especially for trade. काफला in other words. So caravan basically क्या है? एक लोगों का ग्रुप है जो कि इकट्ठे ट्रैवल कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, और ये जो ट्रैवलिंग है दैट इज़ बेसिकली एंड स्पेशली फॉर ट्रेड. ट्रेड यानी तजारत. द सेकंड वर्ड इज स्टेक होल्डर्स, पीपल हु ओन अ शेयर इन अ बिजनेस. स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं या उन लोगों को कहा जाता है जिनका किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में शेयर हो या शेयर्स हो. नंबर 3, आर्मर, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग वर्न इन बैटल, swords, arrows, etc. आर्मर वो चीज़ होती है जो कि पहनी जाती है जंग के वक्त ताकि वो बैटल बैटल इज़ जंग. सॉर्ड्स, एरोज एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आर्मर का पार्ट बन जाती हैं. इनविजिबल इज़ अनएबल टू बी सीन. इनविजिबल वो चीज़, उस चीज़ को कहते हैं जिसको देखा नहीं जा सकता, जो कि गायबाना होती है, जबकि उसका ऑपोजिट विजिबल होगा जो कि देखी जा सकती है या दिख सकती है. Then we have accomplish, complete successfully. Accomplish, किसी भी चीज़ को accomplish करने का मतलब ये होता है कि उसको जो है complete कर चुके हैं, कामयाबी के साथ आपने उसको ख़त्म कर दिया है या उसको end कर लिया है या आपने उसको maybe even achieve कर लिया है, right? Then we have retreat, to move back from a battle. तो रिट्रीट का मतलब है वापस मुड़ जाना, बैटल से स्पेशली जो है जंग से या जंगी मैदान जो था वहाँ से वापस मुड़ आना. स्ट्रैटेजी, अ प्लान्ड मेथड टू अचीव अ गोल. स्ट्रैटेजी कोई भी ऐसा प्लान होता है कि जो आपको एक गोल को अचीव करने में मदद दे रहा हो. वो गोल कुछ भी हो सकता है, इवन इन आवर लाइफ अगर हमने इसको रिलेट करना हो तो वो गोल हमारा एग्ज़ाम्स में फॉर इंस्टेंस जो है वो अच्छे नंबर से पास होना भी है. तो उसके लिए हम क्या प्लान करेंगे वो हमारी स्ट्रैटेजी होगी. Then enthusiasm. Enthusiasm basically means strong interest. किसी भी चीज़ के लिए अगर बंदा strongly interested है, उसको बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर इंटरेस्ट है और वो उस इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को जो है परसू कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो उस चीज़ के लिए एंथुजियास्टिक है. और इस पर्टिकुलर फीलिंग को या इस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट जो उसका एक लिंक है उस चीज़ के साथ, उसको एंथुजियाज्म कहते हैं. इमोशन है उसका एंथुजियाज्म. एंड देन द लास्ट वन इज़ कैजुअलिटीज़. कैजुअलिटीज़ आर पीपल किल्ड और इंजर्ड इन अ बैटल. कोई भी जंग हो तो उसके अंदर जो लोग या तो मारे जा रहे हैं या
फिर वो लोग जिनको कोई ना कोई नुकसान पहुंचा है, जिस्मानी तौर पे इंजर हो गए हैं, तो उनको, ऐसे लोगों को जो है वो मिल मिला के कैजुअल्टीज़ कहा जाता है. The next part is read and respond. Divide the students into two groups. Ask both groups to read the chapter The Battle of Badr carefully. Each group should identify unfamiliar words from the chapter and find their meanings using a dictionary. The students will then discuss how these words are used in the text. Each group will share their understanding with the class. Finally, teacher guide the students to identify and discuss the main theme of the chapter. इस portion के accordingly what we're going to do is कि students के दो groups बना दिए जाएंगे, तो आप अपने जो हैं वो पूरी की पूरी क्लास दो groups में divide हो सकती है, and चैप्टर द बैटल ऑफ बदर जो है उसको पढ़ना है, और हर ग्रुप जो है अनफेमिलियर वर्ड्स, जिन वर्ड्स का मतलब नहीं पता, उन वर्ड्स को उस चैप्टर में से निकालेंगे और निकाल के हाईलाइट करके उनका फिर मीनिंग will be taken out using a dictionary. डिक्शनरी का इस्तेमाल करके उनका मतलब जो है वो निकालना है, और फिर उसके बाद उन वर्ड्स को डिस्कस करना है कि वो किस तरह से जो है इस चैप्टर में इस्तेमाल हुए हैं, और फिर हर ग्रुप जो है वो अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को बाकी या दूसरे ग्रुप के साथ शेयर करेगा. और फाइनली फिर जो टीचर हैं she is going to or he or he is going to guide कि किस तरह से आइडेंटिफाई और डिस्कस किया जा सकता है चैप्टर की मेन थीम को, कि चैप्टर की बेसिकली सेंट्रल जो थीम है वो है क्या. Now we move on to the vocabulary part. Vocabulary में what we're going to discuss is prefixes and suffixes. You guys would already know कि prefixes क्या होते हैं और suffixes क्या होते हैं. So a prefix is a letter or a group of letters added to the beginning of a word to form a new word with a different meaning. ऐसा letter या फिर एक group of letter जो कि किसी एक word के सामने या पहले जो है वो ऐड हो जाता है, अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद जो है वो उसी वर्ड को एक नया मीनिंग दे देता है. अ suffix is a letter or a group of letters added to the end of a word to form a new word with a different meaning. एक suffix क्या है? ऐसा letter या फिर group of letter जो कि word के पहले नहीं, प्रीफिक्स की तरह पहले नहीं, बल्कि एंड पे लगेगा, एंड पे अटैच होगा, और उसी वर्ड को जो है वो एक नया डिफरेंट मीनिंग दे देगा. द बेस वर्ड विच अ प्रीफिक्स और सफिक्स इज एडेड इज कॉल्ड अ रूट वर्ड. और वो वर्ड जिसके पहले प्रीफिक्स ऐड हो रहा है या फिर उसके एंड पे सफिक्स ऐड हो रहा है, उस वर्ड को इटसेल्फ रूट वर्ड कहा जाता है या फिर बेस वर्ड भी कहते हैं. Let us look at some examples of prefixes and suffixes, and down below आप देख रहे हैं कि कुछ examples provided हैं. Prefixes की example है माइक्रो. माइक्रोफोन, फ़ोन का अपना एक मतलब है, लेकिन माइक्रोफोन लगाया तो उसका एक कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग हो गया. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का एक कम्प्लीटली डिफरेंट मतलब है. ऑर्गेनिज्म इज़ के कुछ भी, कोई भी जानदार चीज़ जो होगी उसको आप ऑर्गेनिज्म कहला सकते हैं, लेकिन माइक्रो का वर्ड आगे पहले या प्रीफिक्स अटैच करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया, फंजाई या फिर वायरस की जो स्पीशीज़ होती हैं उन्हीं को कहा जाता है. वो वाली ऑर्गेनिजम्स, वो वाली जानदार चीज़ें जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, और आपको एक माइक्रोस्कोप ही चाहिए होगा उनको देखने के लिए. एंड देन अगेन, जिस तरह हमने अभी माइक्रोस्कोप का मेंशन किया, माइक्रोस्कोप का वर्ड भी आ गया. स्कोप का मतलब कुछ और होता है. स्कोप इज़ के वो पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर विंडो या फिर एक डोमेन जिसके अंदर कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट इट लाइज, और माइक्रो जो है उसके साथ लगा के, तो माइक्रोस्कोप अब एक पूरी की पूरी क्या बन गई है, एक मशीन है, एक टेक्नोलॉजी है, और उसकी बात हो गई है. देन लास्ट वर्ड इज़ माइक्रोबायोलॉजी. बायोलॉजी की बात करते हैं, स्टडी जिसके थ्रू आप जानदार चीज़ों को पढ़ पाते हैं, उनको असेस कर पाते हैं, और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर पाते हैं, समझ पाते हैं बेसिकली जानदार चीज़ों को. और माइक्रोबायोलॉजी की बात होती है तो अगेन हम बिल्कुल नैरो डाउन हो जाते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे होते हैं. एक और प्रीफिक्स है ऑन पेज नंबर 10, दैट इज़ री. अगर राइट से पहले री लगा दीजिए तो फिर री राइट बन जाता है, और उसका मतलब है दोबारा लिखना. राइट इज़ लिखना, बट री राइट इज़ दोबारा लिखना. रीबिल्ड, तो बिल्ड इज़ कुछ चीज़ बनाना, राइट, कंस्ट्रक्ट करना, और रीबिल्ड इज़ कि उसको दोबारा से बनाना. रीचेक, चेक इज़ वन टाइम जो आपने चेकिंग की है, और रीचेक में आप उसको दोबारा चेक कर रहे होते हैं. देन वी हैव रीऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों की सेटिंग करना, राइट, उसको सीक्वेंस देना या फिर उसको ऑर्डर देना, तो दैट इज़ ऑर्गेनाइज. लेकिन रीऑर्गेनाइज करना तो दैट इज़ दोबारा से उन चीज़ों को सीक्वेंस या ऑर्डर देना है. एंड देन अनदर प्रीफिक्स इज प्रोवाइडेड, दैट इज़ ट्रांस. ट्रांसमिट, मिट का मतलब कुछ और है. ट्रांसमिट लगाया तो इसका मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो है, फॉर एग्जांपल आपकी रेडियो वेव्स आर बीइंग ट्रांसमिटेड, और द लाइट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड और स्टफ, और साउंड इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर, you know. And then we have transport.
تو پورٹ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, پورٹ ایئرپورٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی پورٹل کو بھی پورٹ کہہ سکتے ہیں, لیکن ٹرانسپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے والی جو بھی چیز ہوگی وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. اینڈ دین وی ہیو ٹرانسفارم. فارم کچھ بھی ہو سکتی ہے, فارم بیسکلی کوئی شیپ بھی ہو سکتی ہے, رائٹ, لیکن ٹرانسفارم کا مطلب ہوتا ہے چینج ہو جانا کمپلیٹلی. اینڈ دین وی ہیو ٹرانسلیٹ. لیٹ کا مطلب ہوتا ہے لیٹ ہو جانا, رائٹ, دیر ہو جانا کسی چیز میں, لیکن ٹرانسلیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ترجمہ کرنا. اینڈ دین وی ہیو سم ایگزامپلس آف سفکسز, سو لیٹس گو ود دیٹ. دا فرسٹ سفکس از نیس, کلینلینس. تو کلین کا مطلب ہوتا ہے صاف ستھرائی, رائٹ, بٹ دین کلینلینس کا مطلب بھی اسی زمرے میں آتا ہے, لیکن کلین سے تھوڑا سا ہٹ کے آتا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے جی ڈارکنیس. ڈارک از کہ کتنی جو ہے وہ اندھیرا ہے, اور ڈارکنیس جو ہے وہ اس کی ایکسٹینٹ کے اوپر آ جائے گا کہ کس قدر اندھیرا ہے. اینڈ دین وی ہیو پولائٹنیس. پولائٹ ایک پرٹیکولر ہے, کریکٹرسٹک ہے کہ کتنا جو ہے وہ دھیما لہجہ بھی ہو سکتا ہے, انسان بھی ہو سکتا ہے. اینڈ پولائٹنیس کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کی ایکسٹینٹ کی بات ہو جاتی ہے. دین کیئرلیسنیس, اگین کیئرلیس جو ہے وہ ایک بیہیویئر ہے, ٹریٹ ہے, اور کیئرلیسنیس جو ہے وہ پھر اس کی ایکسٹینٹ کے اوپر کوشچن آ جاتا ہے. دین وی ہیو اندر سفکس دیٹ از کریسی. ڈیموکریسی, ڈیمو کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے مین, اور کریسی جو ہے وہ ایک پورا کا پورا سسٹم ہے. سو ڈیموکریسی جو ہے وہ پھر اس سے آگے سسٹم that is created for. Then we have theocracy. Theocracy again اس میں جو ہے وہ تھیو کا ورڈ آ رہا ہے اور کریسی کا ورڈ آ رہا ہے. theocracy بیسکلی ہوتی ہے کہ کسی آپ کے ڈوگمیٹک جو ہے وہ سسٹم چل رہا ہو تو اس کو theocracy کہتے ہیں. Then we have autocracy. autocracy کے اندر autocrats ہوتے ہیں. autocrats mostly technocrats ہوتے ہیں. technocrats کون ہوتے ہیں؟ جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں, جن کی کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہوتی ہے, اس سے ہم autocracy کا نام لے کر آتے ہیں. وہ والا ایک پرٹیکولر پولیٹیکل سسٹم یا پھر ایک پورا سوشل سسٹم جو کہ کن لوگوں نے بنایا ہے یا کون چلا رہے ہیں, ٹیکنیکل لوگ چلا رہے ہوں, تو اس کو ہم آٹوکریسی کہتے ہیں. تھیوکریسی تب ہوگا جب کسی ریلیجس فنڈامنٹل کانسیپٹس کے اوپر جو ہے وہ ایک سسٹم چل رہا ہو تو اس کو تھیوکریسی کہتے ہیں. اور ڈیموکریسی ہے کہ جو انسان جو ہیں اوور آل ایک ایگیلیٹیرین سوسائٹی ہے اور لوگ ہی اپنے لاز جو ہیں وہ خود بنا رہے ہیں, ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, اوپن ایک دوسرا جو ہے وہ اپنا اوپینین شیئر کر رہا ہے, ایکسپریشن اوپن ہے, اور اس کی بیسس کے اوپر دین دے کم ٹو ورڈز اے پرٹیکولر کہ کنسنسس کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بات سب کو یا میجورٹی جو ہے اس پہ مانتی ہے, اور اس کی بیسس کے اوپر ڈیموکریسی بنتی ہے. سو دس از دا سٹل ڈفرینس بٹوین دیز تھری ٹائپس آف کرسیز اینڈ سفکس کیا لگا اس کے ساتھ کرسی کا. And then we have the last suffix shown which is ism. تو پیٹریاٹزم کو جو ہے وہ ہم نے آئی ہوپ کہ یو ریمبر لاسٹ جو ہے وہ بک میں بھی آپ لوگوں کو نے پڑھا ہے. اینڈ دین وی ہیو کرٹیسزم, کسی کو کرٹیسائز کرنا. تو کرٹیک اگر ہم صرف اور صرف سی تک رکھیں تو کرٹیک جو ہوتی ہے وہ یا تو کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ کرٹیسائز کرتا ہے, یا پھر کرٹیک ادروائز جو ہے وہ طنز کے نام پہ یا پھر اسیسمنٹ کے طور پہ بھی ہوتا ہے. اور کرٹیسزم جو ہے وہ کرنے میں آ جاتا ہے کہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے, رائٹ, کرٹیک دیا جاتا ہے اور کرٹیسزم کیا جاتا ہے. اینڈ دین کیپٹلزم جو ہے وہ دیٹ از آلسو اندر فارم آف اکانومی. اکنامک جو سسٹم ہے اس کی ایک فارم ہے کیپٹلزم. کیپٹلزم کے اندر فری مارکیٹس ہوتی ہیں. کیپٹلزم کے اندر نیڈ اور جو یا پھر ڈیمانڈ بیسڈ جو ہے وہ آپ کی مارکیٹ کریٹ ہوتی ہے, اور کیپٹلزم کے تھرو جو ہے وہ ایک انڈیویجویلٹی یا پھر انڈیویجولزم جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی میں بڑھتا ہے. تو ایک اکنامک سسٹم ہے کیپٹلزم کا, اور اس کی ڈھیر ساری کریکٹرسٹکس ہیں. لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ, بٹ اوور آل کہ اکانومی کو چلانے کا ایک طریقہ جو ہے وہ کیپٹلزم ہے. اور پھر اگلا ورڈ ہے سوشلزم. سوشلزم کیپٹلزم کا بالکل اپوزٹ ہے. کیپٹلزم جو ہے وہ نیڈ بیس کے اوپر بن رہا ہے, جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس کے اوپر بیس کرتا ہے. سوشلزم جو ہے اس کے اندر بیسکلی آپ کے جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹریٹاز نہیں ہوتے. فار ایگزامپل مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس یا ہائر کلاس, جس طرح کی جو چیزیں ہیں یا جو ڈویژنز ہیں سوسائٹی کی اس کو نہیں مانا جاتا. جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا پرووائڈ کیا جاتا ہے, اور جو بندہ جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے, جتنا سوسائٹی کو دے سکتا ہے, اس سے اتنا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ سوسائٹی کو دے. تو دس از اے سٹل ڈفرینس بٹوین کیپٹلزم اینڈ سوشلزم. یہ دونوں اکنامک سسٹمز ہیں. ان دونوں کی بیسس کے اوپر ویریس جو آپ کے ممالک ہیں, ڈفرینٹ ممالک ہیں, وہ ان کی بیسس کے اوپر بنتے ہیں, اور ان کی پالیسیز بھی ان کی بیسس کے اوپر ہی بنائی جاتی ہیں اسٹف. بٹ واٹ وی ور ٹو سی واز کہ جی ازم کا جو ہے وہ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے.
Now we have a very short and small task and I hope you will be able to do it. Choose the correct prefix re, un, micro and trans. इनमें से हमने यूज़ करना है to complete each word. हमारे पास नीचे जो है वो वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे पहले कोई ना कोई एक प्रीफिक्स जो इज़ प्रोवाइडेड अबव वो यूज़ करके हमने वर्ड को कंप्लीट कर देना है. फॉर एग्जाम्पल पहला है यूजुअल. क्या हो सकता है? Reusable doesn't make sense. Unusual, exactly. You might have heard about unusual, right? ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा. Usual वो चीज़ जो कि आम है, जो कि यूजुअली होती है, नॉर्मल सी चीज़ हो. Unusual वो चीज़ जो थोड़ा सा हट के हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो या फिर रेयर हो, तो वो unusual होता है. And then we have wave, re-wave. Then we have unwave. इसका भी कोई मतलब नहीं है, ये कोई वर्ड नहीं है, डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा. And then the third one is micro. माइक्रोवेव जो है उसका नाम हमने सुना है. माइक्रोवेव के अब दो मतलब हैं. एक तो जो आपके घर में भी माइक्रोवेव होगा और दूसरा माइक्रोवेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से एक पर्टिकुलर जो है वो पार्ट वो माइक्रोवेव्स का आता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ रेडिएशन, राइट. और फिर हमारे पास अगला वर्ड है साइकिल का. साइकिल के साथ क्या लग सकता है? रीसाइकिल. यस, तो 3 R's इफ़ यू माइट रिमेंबर, द 3 R's ऑफ रीयूज़, रीसाइकिल एंड रिपेयर जो है वो इस तरह से हम इसको यहाँ पे रिसाइकिल का वर्ड कंप्लीट कर सकते हैं. देन वी हैव फॉर्म. सो रीफॉर्म, हाँ रिफॉर्म भी एक वर्ड है, तो इधर री भी लग सकता है. अनफॉर्म, अनफॉर्म इज़ नॉट अ वर्ड. माइक्रोफॉर्म अगैन इज़ नॉट अ वर्ड. ट्रांसफॉर्म इज़ अ वर्ड. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फॉर्म के साथ हम 2 डिफरेंट प्रीफिक्सेस अटैच कर सकते हैं. रीफॉर्म भी कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं. एंड देन वी हैव हेल्दी. Re-healthy doesn't make sense. Unhealthy, yes. Unhealthy food को avoid करना चाहिए. This is something that we are told every now and then, right? So unhealthy, yes. Micro-healthy doesn't make sense. Trans-healthy again is not a word. So यहाँ पे unhealthy आता है. Now the second task is to add the correct suffix ness, ism and cressy. ये 3 हैं और इन तीनों को यूज़ करते हुए we have to form a meaningful word from down below. So we have bureau. ब्यूरोनेस इज़ नॉट अ वर्ड, ना ही डिक्शनरी में मिलेगा. ब्यूरोइज्म इज़ नॉट अ वर्ड, ना ही डिक्शनरी में मिलेगा. लेकिन ब्यूरोक्रेसी इज़ अ वर्ड. ब्यूरो अब बेसिकली मतलब जो है वो एक डेस्क है. ब्यूरो इज़ अ वर्ड दैट मीन्स डेस्क. डेस्क वो वाला डेस्क जहाँ पे काम मतलब लिखा जाए या फिर काम किया जाए, या ऑफिशियल्स जो है वो इसको उस डेस्क को इस्तेमाल करते हैं. तो इसके ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करती है तो वही ऑफिशियल्स और उन्हीं ऑफिशियल्स का ग्रुप जो कि आपकी एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑर्डर्स, या फिर जिस तरह से वो जो है वो मुल्क के वेरियस नीड्स हैं उसको पूरा करते हैं, कुछ प्लान्स हैं उसको पूरा करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं. उस पर्टिकुलर ग्रुप को जो है वो ब्यूरोक्रेसी का ग्रुप कहा जाता है. एंड देन वी हैव नेशनल. नेशनल के आगे भी हम जो है वो लगा के देख लेते हैं. नेशनलनेस नॉट अ वर्ड, unfounded in the dictionary. Nationalism, yes, nationalism is a word. Nationalism क्या है कि जो अपने नेशन के साथ जो है वो आप नेशन से रिलेटेड जो है वो आपका एक तो केयर है. दूसरा नेशनलिज्म के अंदर आप उसके लिए कर क्या रहे हैं, वो आप उसको दूसरे अपनी नेशन को दूसरी नेशन से डिफरेंट किस तरह लेके चल रहे हैं, आप उसको किस तरह से वैल्यू दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें नेशनलिज्म में आती हैं. एंड देन इसके आगे क्रेसी लगा के भी देख लेते हैं. नेशनल क्रेसी डजंट रियली मेक सेंस, राइट. सो द राइट सुफिक्स ओवर हियर इज इज्म. एंड देन वी हैव पोलाइट. तो पोलाइट जो है वो हमने पहले भी पढ़ा है. ऊपर जब हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की जो है एग्जाम्पल्स देख रहे थे, एंड वी नो फ्रॉम देयर कि दिस इज पोलाइटनेस ओवर हियर. पोलाइटिज्म और पोलाइटक्रेसी इज नॉट अ वर्ड. फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास आइडियल. इसी तरह इसके आगे भी सफिक्सेस को अटैच करके देख लेते हैं. आइडियलनेस नॉट अ वर्ड, आइडियलिज्म इज़ अ वर्ड और आइडियलक्रेसी इज़ नॉट अ वर्ड. तो इज़म की बात आएगी. आइडियलिज्म इज़ बेसिकली जब एक इंसान जो है वो कोई भी चीज़ हो, चाहे इंसान हो, वो आइडियलिज्म फॉलो करता है तब जब एब्स्ट्रैक्ट एक कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा हो तो उसको आइडियलिज्म कहते हैं. बहुत ही परफेक्ट चीज़ को या कॉन्सेप्ट को लेके अगर उसने दिमाग में रखा हो तो उसको आइडियलिज्म कहते हैं. प्रैक्टिकली आइडियलिज्म को प्रैक्टिकल होने के लिए प्रैग्मेटिक होना पड़ता है और उसके अंदर कुछ ना कुछ रैशनल अप्रोच आनी चाहिए कि किस तरह से जो है वो हम उसको प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट कर सकते हैं. सो आइडियलिज्म की जब हमें बात आती है तो हम किसी वैल्यू, किसी कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल अगर रिलीजन की भी बात करते हैं तो वो हमारा आइडियलिज्म या फिर आइडियलिस्टिक जो है वो हमारी अटैचमेंट वहाँ पे आ जाती है. द लास्ट वन इज़ फेयर. एंड वी नो कि फेयर के 2 मतलब होते हैं. एक तो इन द सेंस ऑफ ब्राइटनेस, राइट, और दूसरा कॉम्प्लेक्शन की बात हो रही, और दूसरा इसके अंदर जो फेयर है दैट इज़ के जस्ट होना किसी के साथ जो है या फिर किसी का ज़्यादती ना करना इज़ टू बी फेयर विद द पर्सन.
تو فیئرنیس از دی کوالٹی. فیئرنیس یہاں پہ آئے گا. فیئرزم یا فیئرکریسی جو ہے, دیز ٹو آر ناٹ ورڈز ایٹ آل. تو فیئرنیس از دا ون وچ از کریکٹ اوور ہیئر. اینڈ ود دیٹ وی آر ڈن. Alright students, so this was the very first portion of this exercise related to Battle of Badr. ہم نے کچھ MCQs کرے اور ہم نے جو ہے شارٹ کویشچنس بھی دیکھے اور شارٹ کویشچنس کے آنسرس کو خود سے جو ہے وہ بنانے کی کوشش بھی کی ہے. And we might also have, I'm hoping, build opinions regarding to fear, courage, bravery, goals, etc. کہ کس طرح سے fear and stuff ہمیں جو ہے وہ اپنے گول سے پیچھے لے کے جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم پورے کریج کے ساتھ, پوری بریوری کے ساتھ اور پورے فیتھ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اپنی گول کی طرف, سو دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ اس. یس, آل آف دیٹ اینڈ آلسو دا نیور ووکیبلری دیٹ وی ہیو لرنڈ. سو آئی ہوپ کہ آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیں گے. اینڈ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو, ٹیک کیئر. اللہ حافظ.